Good evening, everyone. We are here to report that it is in fact Amir Ranjan's birthday. Here are some reports made by people on the ground to see what they think about this event and what they think about the man in question, Amir Ranjan. Happy birthday, Amir. Oh, falling short of words as always. I think you are the most incredible person I have seen in my life, and we're very blessed to have you in our life. The unconditional love, the unwavering support that you give to others, it's at another level. I just think that, we still have people like you in this world who actually make a difference in everybody's life they are attached with. So, yeah, a very happy birthday. And the favorite memory I cherish with you all. In fact, every day we create some great magical moments which I cherish through the days and years that come by. But the most favorite ones are the Mumbai rains. Together, we were young, and then you holding the babies and we raising them together. Now they are too big enough to be handled. But yes, that's an incredible feeling and memory that I will always cherish. That's all I have. But then thank you, and I think we are rich. We are very rich and blessed, not because of the things that we own, but because we have you. So happy birthday. Hello, Papa. Happy birthday. Your 52nd birthday now. One thing, I think my favorite memory with you is when I first got into cricket, I think last year, and you and me would play early morning until like lunchtime, until lunchtime, and every time I would hit a shot, you would say catch, bowled, out. So one thing I admire about you is how composed you are and how much you don't let your emotions come out easily when you feel like sad or angry. हैप्पी बर्थडे संटू, जन्मदिन का बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम हमेशा स्वस्थ रहो, खुश रहो, हमेशा इसी तरह सब परिवार के साथ लेके चलो। तुमको यदि याद होगा कि हम लोग कैसे बचपन में एक साथ खेलते थे, एक साथ करते थे। तुम जब स्कूल पहली बार राजेंद्र विद्यालय गया था तो हम ही थे जो तुमको तैयार करते थे। उस समय हम तुम्हारा ड्रेसेस को आयरन करते थे, तुमको इवन इंटरव्यू के लिए भी प्रेप किए थे। वो दिन और आज का दिन कितना अंतर हो गया है। अब सब लोग बड़े हो गए हैं, अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए हैं, लेकिन हमेशा उस दिन को याद करना कि कैसे हम लोग कनेक्टेड थे, कैसे एक दूसरे से प्यार करते थे। उसी तरह आप कंटिन्यू रखना अपने परिवार को, स्पेशली पापा के जाने के बाद सब मिलके रहना। तुम्हारे एक खासियत जो हम लोग हमेशा एडमायर करेंगे और हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे कि किस तरह तुम पापा का टेक केयर किया ऑल दोज इयर्स, 8-10 years इट्स बीन, और तुम हमेशा उनका ध्यान रखा, उनका हर जरूरत, उनका हर जो भी उनके साथ करना था सारा कुछ बहुत बढ़िया से उनका टेक केयर किया। उसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल है और बहुत प्राउड भी है कि पापा को ऐसा बेटा मिला कि उनका हमेशा ध्यान रखा। भाई के रूप में भी तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हो। मामा जी के रूप में भी तुम बहुत अच्छा सपोर्ट करते हो सबको। सो थैंक यू सो मच संटू, हम लोगों के परिवार के लिए इस तरह सपोर्टिव पर्सन बन के रहना और हमेशा फिर से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, स्वस्थ रहो, खुश रहो और भगवान तुमको बहुत लंबी आयु दे। हैप्पी बर्थडे संटू बाबू। हमारा तो इनके जैसा नहीं है इतना लंबा चौड़ा भाषण। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ
to entertain everybody and take care of everybody. Thank you once again. Happy birthday. Thank you, Santu. Happy birthday. Hi, Mama G. Happy birthday. Many, many happy returns of the day. Hope today is a fantastic day. I want to say I found it so admirable how resilient and dedicated you were to taking care of Nana G throughout the entire life. It was incredible to see that progression and to see Nana G being so well loved, so close. Something I'll never forget about us is the time you came to Boston University and walked all the way down from campus to Prudential, which is not a very easy walk for some people, or not people walk that people really want to make, but we went all the way down and we saw Teslas. I'll never forget that one long walk. Again, Hello! Happy birthday, Santu! Happy birthday, Mama Ji. Happy birthday. बोलो Santu. बोलो परी का दामाद जल्दी जल्दी बोलो मेरे को याद है जब मुन्नू हुआ था तो तुम भाग के भुवनेश्वर से आ जाता था, मम्मी से डांट सुनता था, फिर भी नेक्स्ट वीक फिर से आ जाता था, वीकेंड बिता के फिर जाता था सुबह सुबह वापस भुवनेश्वर, और अपना जितना सैलरी नहीं होता था उससे ज्यादा तुम उसका गिफ्ट और ड्रेस खरीद के कोपर किराने में उसके ऊपर लुटाते रहता था। और जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते तुम्हारा ये सब, और तुम हमेशा अपने लाइफ में अच्छा बेटा बन के रहा, और अच्छा हस्बैंड और अच्छा पिता हो, और भाई तो सबसे सुपर हो। मामा जी भी। मामा जी तो हो ही। मेरा फेवरेट मेमोरी मामा जी के साथ है अभी मलेशिया में रिसेंटली। तो मैं मामा जी के साथ ऑलमोस्ट एवरी अदर डे मलेशिया में जाता था, डिफरेंट टाइप का रेस्टोरेंट्स में क्यूजीन्स ट्राई करने। किसी दिन थाई, किसी दिन चाइनीज, किसी दिन मिशेलिन स्टार इंडियन रेस्टोरेंट। तो मेरा फेवरेट मेमोरीज है मामा जी के साथ। और मामा जी का वन थिंग दैट आई एडमायर इज हाउ गुड मामा जी मल्टीटास्क जो करते हैं इतना अच्छे से। सो या आई विश टू गेट टू दैट वन डे। और मामा जी की जैसा बनने का भी कोशिश करो। हाँ बिल्कुल। और मेरा तो अभी सबसे मेमोरेबल डेज परी में पूरा गांव घूम घूम के खाए भोज हो, बोलो भोज कॉपर करने का याद आता है। मतलब वी स्टे टुगेदर, स्पेंड डेज देयर। सबसे क्लोजेस्ट ऑफिस संटू का ही था उस टाइम में। एंड द बेस्ट थिंग आई लव्ड इज व्हेन ही वाज लीविंग मुंबई। तो वहाँ जो हम लोग सी ऑफ करने के लिए गए थे स्टेशन पे, तो देयर वी सॉ लॉट ऑफ हिज फ्रेंड्स, कोलीग्स आए थे, बहुत लोग आए थे उधर छोड़ने के लिए संटू को। एंड दैट शोस हिज लाइक the personal relation he has with the people, the connect he has. That was the best part that I loved. And then yeah, that's it from me. हैप्पी बर्थडे बोलो सब। हैप्पी बर्थडे मामा जी। हैप्पी बर्थडे। अच्छा से रहो, भगवान दीर्घायु करे। We'd like to have a word from our sponsor before we continue the video. Please welcome our representative from India's Got Talent. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dadu. Dadu. Happy birthday to you. विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे भैया। तुम्हें जीवन की सारी खुशियाँ मिले और तुम हमेशा स्वस्थ रहो, यही ईश्वर से कामना है। बचपन की वैसे तो हमारी बहुत सारी नोक झोंक और प्यारी यादें हैं। उनमें से एक यादें जो मुझे आज भी हर समय हर वक्त याद आता है, तुम्हें याद होगा कि जो शाम के बचे हुए चावल होते थे वो तुम किस तरह से कितने टेस्टी बनाते थे, उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स और ये सब डाल करके। और मैं और टुल्लू जब बन जाता था तो तुम्हारे पीछे पीछे घूमते थे कि भैया प्लीज़ थोड़ा सा दे दो ना। और तुम उस समय में बोलते थे कि जब मैं हेल्प करने के लिए बोला थोड़ा सब्ज़ी काटो ये करो, तो तुम लोगों ने कुछ हेल्प नहीं किया। और अब बहुत आ गई हो मांगने, मैं नहीं दूंगा।
फिर भी तुम ज़रूर देते थे। तो ये जो तुम्हारा था कि केयर वाई एज अ ये वाला कि नहीं चलो मैं अकेला नहीं खाऊंगा, दे दूंगा उसे, तो हम लोगों को मिलता था तुम्हारी तरफ से। और तो मम्मी का और पापा का ऐसा परवरिश हमारे उन्होंने हम लोगों को दिया कि उन्होंने कभी हम लोगों में कोई फ़र्क नहीं किया कि जब जिसके ऊपर जो काम का आया भार तो वो उस समय में किया। तो तुम्हें याद होगा कि एक और इंसिडेंट है कि जब बड़े मामा जी का देहांत हो गया था और मम्मी को अचानक गांव जाना पड़ा था, उसी समय में तुम्हारा समर ट्रेनिंग टाटा स्टील में चल रहा था और मेरा राजेंद्र विद्यालय स्कूल में हो गया था। तो और उस समय में घर पे भी कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था हमारा जो हेल्प करता। तो किस तरह से तुम आते स्कूल में छुट्टी के टाइम और मुझे पिक करते, फिर हम लोग जल्दी से घर आ कर के जल्दी जिसको जो होता तो कोई बर्तन धो रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इस तरह से मिलजुल कर हम पापा के आने से पहले कोशिश हमारी रहती थी कि उनका लिए लंच प्रिपेयर हो जाए और उन्हें दे दिया मिल जाए। और दोनों दीदियों की शादी उस समय में शादी हो चुकी थी, इसलिए हम और तुम ही थे और तुलू छोटी थी, शायद वो कॉलेज वॉलेज जाती थी। तो तुम दोनों मिल कर के जल्दी ये सब काम करते थे। और इतना ही नहीं, जब उस समय में नया था, मेरा कुछ आइडिया नहीं था, तो रिपोर्ट कार्ड बनाना स्कूल का ये सब, तो मुझे थोड़ा डर वर जब लगता था तुम मुझे हेल्प करते थे। हम लोग रात में बैठ के तुम पूरा मेरा नंबर्स और ये में, तो बहुत एंगल से अगर मैं देखती हूँ तो हर समय तुम सपोर्टिव भाई रहे हो मेरे लिए। और इस एंगल से मैं कभी भी नहीं देखी कि हाँ भैया को कुछ बोला और वो तुमने नहीं किया। तो मैं यही चाहूँगी कि हर जन्म में तुम मेरे बड़े भाई के रूप में रहो। आज मैं ये बात को स्वीकारती हूँ क्योंकि बचपन में मेरा एक ही लड़ाई होता था कि क्यों तुमको भैया बोले, तुम तो सिर्फ 1 ही साल के मुझसे बड़े हो और मैंने तुमसे सब कुछ पहले किया, बोर्ड जॉब भी छोटा मोटा कर लिया। तो इस वजह से तुम बोलते भी थी मम्मी देखो सोनी मेरा नहीं सुनती है, नहीं बोलती है। तो हम बोलते थे क्यों सुने। तो लेकिन नहीं, ये सब तो बचपना था हमारा। बट मैं अब हमेशा चाहूँगी कि तुम मेरे भाई रहो और मैं तुम्हें इस तरह से हम लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत सम्मान भी है क्योंकि तुमने मम्मी पापा सबका बहुत ध्यान रखा। अपना एज अ बेटा का भी फ़र्ज़ बहुत अच्छे से तुमने निभाया। तो मम्मी पापा खुश नसीब थे ये तुम्हारे जैसा बेटा मिला। और मैं भी अपने को बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि तुम मेरे भाई के रूप में तुम मुझे मिले हो। और मैं हर जन्म में चाहूँगी कि तुम मेरे भैया बन के आओ। सो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। चलो, टेक केयर, लव यू। Happy birthday. Happy birthday, Bhaiya. The thing I admire about you the most is how caring you are. In Saharsa, you always checked up on me if my stomach was hurting and if I needed anything. One moment that I had that was very memorable was when you tricked me into thinking that Mama had a vault full of gold in her room, and I kept looking for it, trying to find it. For me, the most admirable personality trait of yours that I find is your selfless personality. I remember when we were in that resort in Malaysia and we were all, like, you spent your entire day with us. We were in the pool and then we played volleyball. We went out to dinner after, so it was a very enjoyable moment. भैया भैया भैया, तुम्हारे बारे में जितना बोले उतना कम है। एक बात जो रितेश जी से हम एग्री करते हैं, हाँ फिर से बोल रहे हैं, एक बात जो रितेश जी से एग्री करते हैं कि हाँ पापा का जैसा तुम टेक केयर किया वो सच में बहुत ज़्यादा सराहनीय है। वो हमेशा हम लोग बात करते हैं और करते रहेंगे। आज नहीं है बट फिर भी हम लोग के हमेशा साथ ही रहेंगे, हमारे यादों में और हमारे हर एक क्षण में। मेमोरीज तुम्हारे साथ तो काउंटलेस है, पर 2 ऐसा फनीएस्ट जो अभी हम शेयर कर सकते हैं, वो नीतू दीदी की शादी के टाइम पे तुम इनविटेशन कार्ड देने गया था और किसके घर गया था वो अच्छे से याद नहीं है, पर वहाँ कुछ फनी मोमेंट हुआ था जो तुम शेयर कर रहा था। और हम और तुम दोनों डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे थे और मेरे मुंह में पानी था। तुम ऐसा कुछ बोला और हम हंसे और सारा पानी तुम्हारे मुंह पे चला गया, पर तुम रिएक्ट नहीं किया, गुस्सा नहीं किया। तो
वो भी एक ऐसा है कि हाँ, हम लोग हमेशा उसको एडमायर कर सकते हैं कि यू टुक इट वेरी स्पोर्टिवली दैट टाइम। और दूसरा फनीएस्ट तो शायद सबको मालूम होगा कि क्रिकेट, तुम इतना भगाया मेरे को बॉलिंग करा करा के कि हमेशा सिर्फ बॉलिंग करवाया मेरे से, बैटिंग करने आज तक नहीं दिया। और हाल में कभी हम लोग बात कर रहे थे तो धीर के साथ तुम क्रिकेट खेल रहा था और तुम बॉलिंग कर रहा था और वो बैटिंग कर रहा था, एंड आई वॉज लाइक ओके नाउ इट्स योर टर्न टू डू बॉलिंग, यू हैव डन एनफ बैटिंग। तो हाँ, और ये इंसिडेंट तो सारा वैभव दोनों जानता है कि हाँ, मामा जी और मम्मा का ये एक फनीएस्ट मोमेंट है कि मामा जी ऑलवेज मम्मा को सिर्फ बॉलिंग करवाए, कभी बैटिंग नहीं करवाए। तो हाँ, ये मेमोरीज मेरे साथ तुम्हारे हमेशा रहेगा। और डाउन द लेन 30-40 इयर्स के बाद हमारे पास और कुछ तुम्हारा मेमोरीज होएगा और हम लोग ऐसे ही तुम्हारे लिए हैप्पी बर्थडे वीडियो बनाएंगे और विश करेंगे और फिर उस समय का मेमोरी शेयर करेंगे। सो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू भैया, और हमेशा अपना प्यार हम सब पर ऐसे ही लुटाते रहना। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे मामा जी। हैप्पी बर्थडे। हेलो हैप्पी बर्थडे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आई ऑलवेज एडमायर द वे you took care of Papa, and always you take care of everyone else. God bless you. Always be happy. I still remember कि जब हम लोग पहली बार मिले थे, and I took you to that ठेला। अब बाद में पता लगा आपके ठेला पे खाते ही नहीं है, but still till today वो ठेला का जो लिट्टी है ना सबसे बेस्ट है। But I still remember that. Happy birthday once again. Hello, Ami uncle. Happy birthday. The thing I admire the most about you, your caring and thoughtful nature, the way you look after your loved ones, that is something I aspire to be. I hope I can be half as good natured as you are when I grow up. My best memory with you, well, ऐसी बहुत मेमोरीज है जो मुझे टाइम टू टाइम याद आती है और मुझे कभी कभी सोच के बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत हंसती हूँ। एक तो जब 3rd स्टैंडर्ड में मेड नहीं आई थी और मॉम और पिक्की मासी नाइट शिफ्ट पे थे और आपने मेरी चोटियाँ बनाई थी स्कूल जाने से पहले। जब हम लोग जमशेदपुर में, हाँ, एक बार हम जमशेदपुर से रांची गए थे और पिक्की मासी का आई थिंक कोई एग्ज़ाम था, तो मैं आपके साथ और आप लोग के कुछ दोस्तों के साथ घूम रही थी और तब मैं छोटी थी तो मुझे समझ नहीं आता था और आपने मुझे एक शॉप में घुस के बोला तुम्हें जो भी पसंद आ रहा है बताओ। तो मैंने ऐसे रैंडमली बहुत सारे कपड़े उठा लिए जो मुझे अच्छे लग रहे थे और आपने वो सारे कपड़े मुझे ख़रीद दिए थे। मुझे उस टाइम इतनी डांट पड़ी है मम्मी से घर पे, बट मैं पहली बार किसी ने मेरे साथ वैसे शॉपिंग की थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। माय एक और 3rd मेमोरी विथ यू दैट आई रियली चेरिश, आई थिंक जब भी आप मेरे लिए इतने थॉटफुल वे में इतनी सारी स्टेशनरी लाते थे, यूजुअली लोग ऐसे गिफ्ट्स देते हैं जो उनको पसंद है, बट आप मुझे ऐसी चीज़ें देते थे जो मुझे एक्चुअली ज़रूरत पड़ेंगी, जो कोई सोचता नहीं है। सो या Happy birthday, Amya. Wishing you a very happy birthday. Or one of the things I really admire about you is the right decision that you take in any given situation or time. Your decision is always right, and हम लोग गलत हो जाते हैं, हम लोग सोचते भी हैं कि नो, अम्या जो सोच रहा है, जो कह रहा है वो ही सही है। एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट यू, यू थिंक बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। मेमोरीज, आई वुड से द बेस्ट मेमोरी इज़ रिलेटेड टू ईटिंग ओनली। हम जब पहली बार बॉम्बे से जमशेदपुर आए थे 2006 में, आई रिमेंबर, येस, you cooked mutton for us, and that is the best mutton that I had.
मैंने इतना टेस्टी मटन अपनी लाइफ में नहीं खाया, कहीं पे भी नहीं खाया. मैं इतनी जगह रही हूँ. You are an amazing cook, and the delicacies that I have tasted, you cook in a very different way and in a very unique manner. I would say आप बहुत प्यार से बनाते हो जब आप cook करते हो कुछ चीज़ें. And these are small things that really we cherish. I cherish actually remembering. And I often tell Gibu also that Amia ki cooking बहुत अच्छी है. That's all. Sending you loads of blessings and have a beautiful and happy life. Stay healthy. Take care. Love you. Bye bye. Happy birthday, Amya uncle. One good memory that I have of you is when I met you for the very first time in Hyderabad. I loved how much love, care and funny you were. And one thing that I admire about you is how successful you are and how you are handling adult life, because this is something I'm trying to achieve right now. So very that is the quality I admire about you. One more quality that I admire about you is how loving and caring you are. So I hope when I grow as the years go by, I become a mature, good adult like you. So yes. Happy birthday भैया. Thank you to always support for everything. Happy birthday uncle. Pranam. Thank you for giving iPad. To close out our event this evening, we'd like to invite our CEO for some quick words. Hi Papa. I don't really know what to say because I'm such a great son that you already know how much I love you. But I just want to thank you for being such a great dad, so supportive, and everything you do for us and everyone is so appreciated. The thing I admire about you the most is obviously your calmness and level-headedness. The way you do everything in the house basically. If I was in your position, I think I'd be screaming at people the whole day. So yeah, I really appreciate how great of a dad you are, how responsible you are. And our favorite memory together is when we went to a hotel, I think 7 or 8 years ago, a really long time ago, but we spent the whole evening going down slides, and it was a really fun time. And I think even though it was so long ago, I'll remember that forever. So yeah, thank you on behalf of everyone, even though you just heard from everyone. Thank you for being such a great husband, a great brother, especially a great dad. Bye.